Hello, a very warm evening to all of you. Today, I am live again for the discussion of the important topic. The topic that is very useful, the topic that is very important, and the topic is the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. As you all know that the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2018 has been passed by both the houses of the parliament, and now this bill becomes an act. This act is also known as Triple Talaq Act. This act previously known as Triple Talaq Bill. This is one of the most controversial act, you can say, that has been passed by the Parliament of India, the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. There is a raging debate in this country about this act. So before jumping into the topic, we have to understand the concept of marriage in Islam. The concept of marriage in Islam. This is one of the most important topic. What is the concept of marriage in Islam? Marriage is considered as the sacred institution in Islam. In fact, the marriage completes the faith of a Muslim. Therefore, celibacy and bachelorhood is not practiced in Islam. This is one of the sacred institution in Islam. There are also Islamic ways of divorce as well. One of the most important Islamic ways of divorce are: number 1, mutual consent; number 2, khula; number 3, talaq-e-hasan, talaq-e-ihsan, and talaq-e-bidat. Talaq-e-bidat is one of the controversial practice of divorce. Now first, we have to understand what are these types. What is the meaning of these types of divorce? Number first, mutual consent. अगर दो मियाँ बीवी अगर वो शादी के बंधन में हैं, अगर वो अपनी मर्जी से अलग होना चाहते हैं, तो देयर आर अ वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट. वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं. अगर उनको लगता है कि अब उनका रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता, तो देयर इज ए प्रोविजन इन इस्लाम लाइक म्यूचुअल कंसेंट. वो अपनी मर्जी से एक दूसरे को डाइवोर्स दे सकते हैं. नंबर 2 इज खुला. खुला is something initiated by a woman. Khula is something that is initiated by a woman. यहां पर औरत बीवी हस्बैंड से डाइवोर्स मांग सकती है. अगर हस्बैंड एग्री होता है तो ठीक. अगर हस्बैंड एग्री नहीं होता, if husband doesn't agrees, the wife can approach to the Sharia court as well. Then Sharia court will decide कि तलाक होगा या नहीं होगा. अगर फिर भी वाइफ एग्री नहीं करती है शरीयत कोर्ट से, तो शी कैन अप्रोच टू द नॉर्मल जुडिशरी एज वेल. दिस इज अ खुला दैट इज इनिशिएटेड बाय अ वुमन. नंबर 3, तलाक-ए-हसन. दिस इज a form of a talaq, talaq-e-hasan. In this talaq-e-hasan, the husband can pronounce talaq once and wait for 30 days. इस talaq-e-hasan में हस्बैंड एक बारी तलाक बोलेगा और फिर वो 30 दिन का इंतजार करेगा. In between these 30 days, arbitration can take place, reconciliation take place. Now what is this arbitration?
आर्बिट्रेशन का क्या मतलब हुआ? इन 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेशन क्या होगी? आर्बिट्रेशन में गांव के लोग बीच में आ सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के लोग बीच में आ सकते हैं, जो बता सकते हैं नो नो यू कांट डू दिस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुगेदर, डोंट गिव अवे योर रिलेशन। बातचीत करवा सकते हैं, ये आर्बिट्रेशन में पॉसिबल हो सकता है। रिकंसिलेशन में ये हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ का दोबारा से कंप्रोमाइज हो जाए म्यूचुअली, तो वो लोग तो हस्बैंड वापस तलाक ले सकता है, वापस ले सकता है। नाउ अगर इस 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेशन और रिकंसिलेशन नहीं हुआ तो हस्बैंड 30 दिन के बाद एक और बारी तलाक बोलेगा और फिर 30 दिन का वेट करेगा। फिर इस बीच आर्बिट्रेशन हो सकती है, रिकंसिलेशन हो सकती है। अगर आर्बिट्रेशन और रिकंसिलेशन नहीं हुई तो फिर हस्बैंड एक और बारी तलाक बोलेगा और फिर ठीक 30 दिन का फिर से वेट करेगा। अगर इसी बीच दोबारा रिकंसिलेशन या आर्बिट्रेशन नहीं होती है तो तलाक फॉर्मुलाइज किया जाएगा, तलाक हो जाएगा। दिस इज तलाक ए हसन। नेक्स्ट इज तलाक ए एहसान। दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इन इस्लाम। तलाक ए एहसान में हस्बैंड कैन pronounce तलाक वंस एंड वेट फॉर 90 days। 90 दिन का वेट करेगा वो। इस 90 दिन के अंदर आर्बिट्रेशन इज पॉसिबल, रिकंसिलेशन इज पॉसिबल। अगर आर्बिट्रेशन नहीं होती है, रिकंसिलेशन नहीं होती है, तो ठीक 90 दिन के बाद तलाक फॉर्मुलाइज किया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल in India, that is talaq biddat. This talaq biddat, you all know that this talaq biddat is also known as triple talaq. इसमें हस्बैंड 3 बारी तलाक बोलेगा और तलाक फॉर्मुलाइज हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये तलाक देने की जो परंपरा चल रही थी वो सोशल मीडिया पे भी शुरू हो गई थी। फेसबुक पे, स्काइप पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे द हस्बैंड ट्रिपल तलाक 3 बारी तलाक बोलेगा और तलाक पॉसिबल हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, दिस तलाक ए बिद्दत। और इसी तलाक ए बिद्दत को लेकर देश में बड़ा हंगामा मचा हुआ था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल। नाउ दिस तलाक ए बिद्दत is banned in many countries. In many countries, many big Islamic countries. The countries were Egypt, Bangladesh, and Pakistan as well. पाकिस्तान ने भी इसको बैन किया हुआ था, बट हमें क्यों देर लग गई इसको बैन करने में? दिस इज कंप्लीटली अ वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको पॉलिटिसाइज किया गया। मैं जो आज आपको इस एक्ट के बारे में बता रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता और ना ही मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं। हम इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट के थ्रू नहीं समझेंगे, हम इसको समझेंगे कि इसके पीछे पॉलिटी क्या है। द लोकसभा, द राज्यसभा हैज पास्ड दिस बिल और नाउ दिस बिल बिकम्स एन एक्ट। द एक्ट इज द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। दिस पर्टिकुलर तलाक बिद्दत ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इसमें ना ही आर्बिट्रेशन पॉसिबल है और ना ही रिकंसिलेशन पॉसिबल है। दैट मीन्स यहां पर अगर आपने 3 बारी तलाक बोल दिया तो यहां पर ना ही आपके फैमिली मेंबर्स आपकी सुलह कराने आएंगे और ना ही हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल तलाक वापस ले सकते हैं। 1 बारी तलाक बोल दिया, 3 बारी तलाक बोल दिया तो तलाक फॉर्मुलाइज हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि ना ही इसमें आर्बिट्रेशन है ना ही रिकंसिलेशन है। बड़े सारे एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विस एग्जाम देना चाहते हैं उनको यह समझना होगा कि ये तलाक ए बिद्दत जो है ये क्या है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रिपल तलाक। तलाक ए बिद्दत, दिस तलाक ए बिद्दत इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स टू नो व्हाट इज तलाक ए बिद्दत। This talaq biddat is derived from a Arabic word bidda, which means innovation.
which means innovation. And this talaq bidda is a very controversial topic in India. Now, the Supreme Court of India has slammed this practice and said that now, जो भी इस बिद्दत को प्रैक्टिस करेगा उसको 3 साल की सजा मिलेगी। अब ये केस पहुंचा कैसे था? एक हिस्टोरिक केस हुआ था, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016-17, जिसमें वो एक मुस्लिम लेडी अप्रोच करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और कहती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ ट्रिपल तलाक हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मोरओवर, ट्रिपल तलाक जो है वो आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन करता है, आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन करता है, आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन करता है, आर्टिकल नंबर 25 का वायलेशन करता है। शायरा बानू का यह भी कहना था कि जो ये ट्रिपल तलाक है ये कोई एसेंशियल फीचर नहीं है और इसलिए इसको आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, हिस्टोरिक सुनवाई होती है, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाया जाता है, जिसमें से कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि अब से ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा और जो भी इसको प्रैक्टिस करेगा उसको कानूनी सजा मिलेगी। बट होता क्या है फिर? सरकार द्वारा एक आंकड़ा दिया जाता है कि सरकार कहती है कि जजमेंट के बाद में भी करीब 250 इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए जिसमें ट्रिपल तलाक दिया गया। मोरओवर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा था कि पार्लियामेंट इस विषय पे कानून बना सकती है। तो लगभग 250 इंसिडेंट देखने के बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये ट्रिपल तलाक बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ट्रिपल तलाक बिल पार्लियामेंट में लेकर आती है और इसको लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाती है, प्रेसिडेंट द्वारा साइन होते हैं और ये बिल एक्ट बन जाता है जिसका नाम है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। अब इसके प्रोविजन क्या है इस एक्ट के, वो समझने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का पहला प्रोविजन ये कहता है कि अब से जो भी ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस करेगा उसको 3 साल की सजा और फाइन किया जाएगा। नंबर 2 कि अब से ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के, वन इज कॉग्निजेबल एंड अदर इज नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट ए वारंट और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को वारंट चाहिए अरेस्ट करने के लिए। अब बड़े सारे ऑफेंस हैं जिसमें पुलिस को वारंट नहीं चाहिए होता है, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, इसमें सरकार मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट का वेट नहीं करती। पर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें वारंट का वेट किया जा सकता है। तो अब से ये जो ट्रिपल तलाक कोई भी परफॉर्म करेगा तो अब उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। यह भी तय किया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको तभी माना जाएगा जब औरत जिसके साथ ये ट्रिपल तलाक हुआ है वो कंप्लेंट करती है या उस औरत का कोई करीबी ब्लड का रिलेशन का रिश्तेदार अगर कंप्लेंट करता है तो इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।